Guys, this is Vishal and welcome back. So this chapter is percentages, profit and loss part 2, right? And in this we will be discussing about applications of shortcut number 1. So guys, if you haven't watched the first video, watch it. It is by the name of percentage, profit and loss part 1. There is some issue in the audio, but I have written everything very clear. So at some points there are issues in that video, okay, but that is the base, guys, and very important. You know how important is base of any video, okay? So let's continue this chapter. So before continuing this chapter, I would like to discuss something with you, or a quick recap. See, if you have been given what is 37.5%, so how we can write 37.5% is 50 minus 12.5%, and we know by the table that 50 is equals to 1 by 2 and 12.5 is equals to 1 by 8. So what we got on solving this, we got 5 by 8, 4 minus 1, 3, 8, 4 minus 1, 3 by 8, right? So this term, I will address this term by numerator or denominator or simply fraction, okay? So whenever I write anywhere numerator by denominator or fraction, so this is how I got this. So if there is an increase of 37.5%, so how we will write is 1 plus fraction, and if there is decrease of 37.5%, how we will write is 1 minus fraction, right? So this term becomes 1 plus 3 by 8, and this term becomes 1 minus 3 by 8. What? 5 by 8 and 11 by 8. What I am doing, and this is 5 by 8, right? So I am a kind of not that much to the recordings, that's why this things happens, okay? So now what is 66.66%? How you can write this? So simply, you know that 33.33% is equals to 1 by 3. So if we multiply both sides by 2, we get 66.66% is equals to 2 by 3, right? So increase of 66% is equals to 1 plus fraction, or 1 plus 2 by 3, 5 by 3. So after this step, what you have to do is you simply have to multiply your base value with this. I will tell you further in this video how you have to do this, okay? So one more example. Let's do one more example, right? How you can write 83.33%? Figure it out. So can you write it as 33.33% plus 50%? And you know 50 is equals to 1 by 2 and 33.33 is equals to 1 by 3. So what we get here is 5 by 6, right? So increase of the 83.33% is equals to 1 plus 5 by 6, and decrease is equals to 1 minus 5 by 6. So guys, by that table simply you can find many values that most commonly occur in the exam, okay? That is from 1 to 25 values, and if you cannot do 1 to 25, at least remember the values that I have written in the previous video, because that's very important, very 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 important, and without that thing it's a kind of inapplicable for you to apply the shortcuts in arithmetic if you go by my method. And believe me, my methods are very fast. So there is one more important thing. I will tell you a very good shortcut from this thing, okay? So see, if you have any values, A is equals to B into C, so directly what you can write is B is inversely proportional to C, or C is inversely proportional to B. And if you are given
A is equals to B into C, B divided by C. So from here you can observe that B is directly proportional to C. देखो यार, अगर is equals to के बाद दो वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेशन में है जैसे B और C, तो ये दो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है. और अगर दो वैल्यूज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो इज इक्वल्स टू के बाद डिवीजन में लिखी जाएगी. सो यही लिखा है यहाँ पे. वी कैन से दैट इफ़ वी हैव अ फार्मूला देन कीप द कांस्टेंट क्वांटिटी ऑन वन साइड एंड रिमेनिंग ऑन द अदर, एंड इफ़ टू क्वांटिटीज आर इन मल्टीप्लिकेशन then they are inversely proportional, and if in division they are directly proportional, right? So now let's do some question. We have done this question in chapter number 1 already done. See, if price of petrol is increased by 60%, then by what percent we should reduce consumption so as to keep the expenditure constant? So how we can do this? For this first we have to understand the basic thing, ठीक है. अगर तुम्हें बाज़ार में 2 kg चीनी लेने के लिए भेजा है और 1 kg चीनी का रेट है 40 किलो, तो 2 kg का कितना होगा? 80 रुपये. तो यही है यहाँ पे एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन और क्वांटिटी. यही चीज़ है. क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं. सो ऑप्शंस आर 40%, 50%, 37.5%, एंड वी डोंट केयर अबाउट प्राइस, वी आर टू रिच, राइट. सो टिल द टाइम जब तक आंसर नहीं निकाला है हमने, तो तब तक डी को देखते हैं कि शायद डी ही है आंसर, अगर नहीं निकला तो ठीक है. तो देखो मैंने क्या बताया था कि अगर इज इक्वल्स टू के बाद दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लिकेशन में है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अगर ये दो क्वांटिटीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, तो हमारा शॉर्टकट वर्क करेगा. सो प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है 60/100 से, और 60% को हम 60/100 लिखते हैं. तो 60/100 को अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा 3/5. तो देखो n बाय डी का इंक्रीज़ है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म है कंजप्शन, वो कितने से डिक्रीज़ हो कि हमारी वैल्यू एक्सपेंडिचर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, कांस्टेंट रहे एक्सपेंडिचर, ये कांस्टेंट रखनी है हमें. तो मैंने पिछली वीडियोस में बताया था फार्मूला में n/d प्लस n से डिक्रीज़ करना पड़ेगा. तो यही हमने यहाँ पे किया है. सी 3/5 प्लस 3 से डिक्रीज़ किया है, तो 3/8. तो हमें अपने टेबल से पता है कि 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%. सो 3/8 की वैल्यू कितनी होगी? 12.5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 37.5%. तो what we get that we don't care about price is wrong, and the correct answer is 37.5%. You care about the price, right? So let's do this question. I had some other plan, but then I put this question in this video only. See, length of a rectangle decreases by 43.75%, and so by what percent we should increase its breadth so as to maintain the constant area? So area is equals to length into breadth, and area is equals to constant. अगर ये constant है तो ये दो quantities inversely proportional आ गई एक दूसरे के. तो अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम अपना शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है. तो अभी देखते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे हम अपने शॉर्टकट को. यहाँ पे देखो, जो मैंने तुम्हें अभी बताया कि लेंथ इज इक्वल्स एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, एंड बोथ क्वांटिटीज़ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बिकॉज दे आर इन मल्टीप्लिकेशन. सो लेंथ डिक्रीजेज बाय 43.75%. तो हमें पता है 43.75% को हम क्या लिख सकते हैं? 50% माइनस 6.25%. तो 50% की वैल्यू है 1/2 और 6.25 की वैल्यू है 1/16. तो इसे सॉल्व करके आ गया हमारे पास 7/16. तो हमने जो पढ़ा था कि अगर डिक्रीज़ है n/d का डिक्रीज़ है, तो दूसरी वैल्यू जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो n/d माइनस n से इंक्रीज़ करेगी ताकि एरिया कांस्टेंट रहे, ठीक है. कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट ही रहे, कोई चेंज ना आए इसमें. तो यही हमने यहाँ पे किया है. देखो
7/16 minus 7, which is equals to 7/9. So we know 1/9 is equals to 11.11%. So 7/9 is equals to 77.77%, right? So your answer is 77.77%. Let's do one more question. Very good question. This question is very tricky but very easy, right? The price of a fan A is twice that of fan B. The price of fan A is increased by 10% and that of fan B is decreased by 20%. Find the percentage decrease in the sum of prices of fan, right? Decrease or decrease. तो इसमें क्या दिया है कि दो फ़ैन है हमारे पास, एक का रेट जो है वो 1x है, दूसरे का 2x है. इसमें कुछ चेंज आ रहा है, इसमें कुछ परसेंटेज वैल्यू में चेंज आ रहा है. तो हमें बताना है कि 3x और जो यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं x और y, x प्लस y, इसमें कितना परसेंट चेंज है. ठीक है, तो इनको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो हमें बताया हुआ है कि फ़ैन ए का जो इनिशियल प्राइस है वो फ़ैन बी से डबल है और हमें कोई कुछ नहीं दिया. तो परसेंटेज इसमें हम क्या करेंगे, फ़ैन बी को 100 एज्यूम करेंगे ताकि परसेंटेज लगाना बड़ा आसान हो हमारे लिए. ठीक है, तो अगर फ़ैन बी का 100 है तो इसका डबल कितना होगा, 200. तो फ़ैन ए का हो जाएगा 200. तो हमें निकालना है 20%. सो 20% ऑफ 200 क्या होगा, हाउ टू फाइंड 10% ऑफ 10% इंक्रीज़ हो रहा है, सॉरी. तो 10% कैसे निकालते हैं हम किसी भी वैल्यू का. हमारे पास 200 दिया है, सिंपली लास्ट में डिवाइड बाय 10. ठीक है, 10% निकालना है किसी भी वैल्यू का तो डिवाइड बाय 10, और अगर 1% निकालना है किसी भी वैल्यू का डिवाइड बाय 100. सो सिंपली विदाउट कैलकुलेशन यू कैन राइट दीज थिंग्स कि हाउ टू डू दीज थिंग्स. ओके, तो अभी हम करेंगे इसके अकॉर्डिंगली. यहाँ पे 10% होगा 20 रुपीज़, राइट. 200 का 10% 20 रुपीज़. तो न्यू प्राइस कितना आ जाएगा, 200 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 220 रुपीज़. और फ़ैन बी में डिक्रीज़ है 20% का, तो 20% का डिक्रीज़ कैसे निकालेंगे हम. 10% कितना होगा, डिवाइड बाय 10 कर देंगे, 10 रुपये. तो 20% कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, नीचे डिवाइड बाय 20 कर दो. 100 में है तो नहीं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो इसको, सारी. तो 20 रुपीज़ आ जाएगा. तो डिक्रीज़ ऑफ 20% इज इक्वल्स टू 20 रुपीज़. तो 100 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज़. तो इनिशियल सम था हमारा 300, 200 प्लस 100, एंड फाइनल सम है हमारा 220 प्लस 80 विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 300. सो इनिशियल और फाइनल में तो कोई डिफरेंस है नहीं. सो नो चेंज इज़ आवर आंसर. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन. तो हमारी अगली चीज़ जो इस चैप्टर में हम करेंगे वो है सक्सेसिव चेंज इन परसेंटेजेस, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ऑफ परसेंटेज ओवर परसेंटेज. सो हम इसमें 3 मेथड्स डिस्कस करेंगे सक्सेसिव चेंज का. तो पहले अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज़ सक्सेसिव चेंज. मान लो हमारे पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये का 20% डिक्रीज़ कर दिया, तो 20% डिक्रीज़ 80 रुपये. फर्दर हमने 80 का 20% डिक्रीज़ कर दिया, तो 20% को हम कैसे लिखते हैं, 20/100. और कैसे लिख सकते हैं, 1/5 का डिक्रीज़ कर दिया, तो 1/5 का डिक्रीज़, तो 1 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू 4/5. सो हम 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 से. ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि क्या आ जाएगा 20%. दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, पहले 10% निकालें, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करते, तो 10% कितना आ जाएगा इसका 8, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो आ जाएगा 20%, तो -16. तो हम जो चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे 20% है 20 रुपीज़, उसके बाद 20% है 16 रुपीज़. तो यही चीज़ है हमारी परसेंटेज ओवर परसेंटेज. ठीक है, यही चीज़ समझनी है हमें कि हम इसे कैसे निकालें फास्ट. सो सबसे पहले एक फार्मूला होता है हमारा, इसको सक्सेसिव चेंज फार्मूला लिखा है. सपोज देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ और डिक्रीज ऑफ ए और बी इन परसेंटेज, सो ओवरऑल चेंज इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस AB बाय 100. ठीक है, तो राइट डाउन दिस फार्मूला.
राइट डाउन दिस फॉर्मूला। तो अगर, और इसमें क्या लिखा है ये भी मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ। अगर डिक्रीज़ है 20, मान लो ए का डिक्रीज़ है और बी का इंक्रीज़ है, तो हम ए की जगह लिखेंगे -a और बी की जगह लिखेंगे +b, या फिर सिंपली b। अगर b का डिक्रीज़ है और a का भी डिक्रीज़ है तो हम a की जगह लिखेंगे -a और b की जगह लिखेंगे -b। ठीक है, तो ये समझ गए तुम। इसकी लिमिटेशन है एक बहुत बड़ी मेथड की, कि जब भी 2 से ज़्यादा होता है इंक्रीज़ और डिक्रीज़, तो इसमें कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी बन जाती है, और इससे FCAT या CDS में हमेशा कुछ ना कुछ आता ही आता है, या फिर मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में कुछ ना कुछ आता ही है इन फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो अब करते हैं हम मेथड 2 और मेथड 3 को क्वेश्चन से ही करें तो ठीक रहेगा। देखो, द प्राइस ऑफ अ फैन ए इंक्रीज सक्सेसिवली बाय 20%, 30% एंड 10%, फाइंड नेट परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस। तो इसमें बहुत बड़ी ट्रिक है। इसमें लिखा है पहले 20% इंक्रीज़ हो रहा है, फिर 30% इंक्रीज़ हो रहा है, फिर 10%। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, इन सबको ऐड कर देते हैं 60 और लिखते हैं 60% का इंक्रीज़, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें सक्सेसिवली चेंज हो रही है, तो ये वैल्यूज़ जैसे मैंने पीछे बताया अभी एग्जांपल में कैसे डिफ़र करती है वो आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले मेथड 2 को करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, मेथड 2 के अकॉर्डिंग इनिशियल प्राइस 100 ले लो, या फिर अगर तुमसे पूछा है कि फाइंड द फाइनल प्राइस ऑल्सो, तो तुम 100 में 20% ऐड कर दो, फिर 30 ऐड कर दो, फिर 110 और मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैंने यहाँ किया। अगर तुमसे सिर्फ यही पूछा है फाइंड द नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़, तो कैसे करना है, 100 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट परसेंटेज इज़ 20/100, second percentage is 30/100 and third percentage is 10/100, राइट। सो इसे सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, ये क्या हो गया, ये पूरा चला गया, ये 2 चले गए, भी चले गया, 3 3 6 6/10 आ जाएगा। नो आई एम डूइंग दिस रॉन्ग, देयर इज समथिंग रॉन्ग, वेट, follow this method only. So what here we are doing is 100 multiply by 120/100 multiply by 130/100 multiply by 110/100। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 171.6। ठीक है, तो 171.6 आ गई, तो हमारे चेंज कितना आएगा, 171.6 माइनस 700। इनिशियल वैल्यू जो थी हमारी, इनिशियल हमने 100 ली थी, तो -100 कर देंगे हम, तो कितना चेंज आएगा 71.6 का। तो ये पॉजिटिव साइन के साथ है तो ये इंक्रीज़ ही होगा, राइट। तो अगला मेथड क्या है इसका, देखो इनिशियल प्राइस 100 किया, 100 के ऊपर 30% निकालो, 10% निकाला हमने पहले, डिवाइड बाय 10, तो 10 आ गया, 30 कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 = 130। फिर 130 के ऊपर 20% निकाल दो, पहले इसको 10 निकाल लो, तो 10% आ जाएगा इसका, 13 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 20% आ जाएगा, तो 26 ऐड कर देंगे, फिर 156 का कितना है 10%, 15.6, तो फाइनल वैल्यू हमारी आ जाएगी 171.6, राइट। तो 171.6 हमारी फाइनल वैल्यू आ गई। तो चेंज कितना है, 100 से पहुंच रहा है 171.6 पे, तो कितने का चेंज है 71.6। सो हमारी इनिशियल वैल्यू 100 है, तो परसेंटेज भी 100 होता है, तो डायरेक्टली -100 कर देंगे इससे, तो 71.6 इज़ आवर इंक्रीज़। सो हम इस पे सक्सेसिव चेंज का फार्मूला भी लगा सकते हैं, a + b + ab/100। वो कैसे, सबसे पहले 20% और 30% पे उससे कोई वैल्यू आ जाएगी, फिर 2 टाइम, ठीक है। तो पहले 20% और 30% पे निकालते हैं, इंक्रीज़ हैं तो दोनों साइन +a + b + ab/100।
30 plus 20 is equals to 50. 50 into 6, 50 plus 6 is equals to 56%. उसके बाद हम 56 और 10 पे निकालेंगे. 56 plus 10 plus 56 into 10 by 100 is equals to 66 plus 5.6, which is equals to 71.6%, right? तो इससे भी हमारा आंसर आ गया. Guys, like and follow my profile to never miss any new update and video, right? I am very much, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मैं तुम्हारा सारा सिलेबस इसमें डाल दूंगा यूट्यूब में और डेली वीडियोस डलेंगी, तो फिर आप फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है. एंड गाइज प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. Very important things. So any doubt, ask me in the comment section. And what I did here, here I was getting something wrong, so I will rectify this, that how I was getting this wrong and why I was getting this wrong, because ऐसे गलत तो होना तो नहीं चाहिए ये, लेकिन हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा. चलो मैं वो देखता हूँ, फिर अगली वीडियो में बताता हूँ कि मैंने क्या गलती की थी यहाँ पे. थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे. जय हिंद.